Assalamu alaikum everyone. This is Sabahat and welcome to my live session. So first of all, I'm just going to go on other platforms and see who's live with me. And in the meantime, those of you who are watching me, do let me know where you're watching from. Are you from Pakistan? Are you from abroad? Or are you from any other province or district of Pakistan? So जब तक आप ये लिखते हैं, I'll just be back in a jiffy. And in the meantime, do let me know what do you think about today's topic. So I'll just see if I can see myself live on the other platform, and then I can start. Okay, so आज का जो session है, it's basically it revolves around so many things, or to give the caption and to summarize it into just one line, that was a difficult task. So when you're doing these things, you have to keep in mind a lot of things. आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे जो है किसी की जो है दिल आज़ारी हो. आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे ये प्रेजेंट हो या ये शो हो कि यू डोंट हैव गुड एथिकल वैल्यूज़, या आप कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जिससे जो है आपके जो है ऊपर एक जो है स्टैम्प लगे, पर्टिकुलरली कोट अनकोट, कि भाई दिस पर्सन फ्रॉम दिस स्पेसिफिक कंट्री spoke about this thing. So आप whenever you are on these platforms, you have to be very careful. So उतनी चीज़ों को, सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये टॉपिक जो है आज मैंने सेलेक्ट किया है, एंड इट्स टॉपिक विच आई वांट टू टॉक अबाउट, क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत सी जनरेशन्स हैं जो कि इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रही है, एंड दैट्स माई मेन गोल कि I want to talk about this. Qazi Nadeem Ashraf Saab, Walaikum Assalam, I hope you're fine. So let's get to my topic. और सबसे पहले तो I just read this particular quote about cultural values, और वो मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगी. So I don't have the author who said this, but ये है कि it has everything. So I would just like you to listen to this quote, and then I can move forward, cause आज हमारा जो पूरा session है, it's revolving around this particular quote. Cultural values are the roots that ground us, the compass that guides us, and the lens through which we see the world. They define not just who we are, but what we stand for. So this is all about cultural values, and now I'm just going to start with my session and going to talk about things which I think are very important, and they are need of the day, and we need to keep those things in mind. So अगर हम जो है cultural values की बात करते हैं, तो cultural values तो यानी it's a broad spectrum, और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो cover होती हैं, and we as digital creators, क्योंकि one part of जो session है और जो discussion है, that is about the digital creators. जो digital creators है, including myself, but over here I'm not going to talk about myself. I'm going to specifically focus on those digital creators जो कि who are not preserving or upholding the the gist of culture. रादर वो उसको जो है उस तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं या डाइग्रेस कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. सो दैट इज़ द एग्जैक्ट आइडिया व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट, एंड इन द सेम वे आई वांट यू पीपल टू इंटरेक्ट एज वेल, कॉज आप जो है जिस भी एज ब्रैकेट के हों, आपके सामने भी ढेर एग्जाम्पल्स हैं और ढेर ऐसी जो है ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि आप प्रैक्टिस करते होंगे या आप देखते होंगे अपने लाइफ में. और जो लोग 30 प्लस जो है, यानी देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ एवरी काइंड ऑफ एज ब्रैकेट. सो उनके लिए जो है किस तरीके से उन्होंने अपनी कल्चर वैल्यूज़ प्रिजर्व की, और आगे उन्होंने जो है अपने यंग वंस को या अपनी जनरेशन्स को किस तरह सिखाई. सो यू हैव अ लॉट टू ऑफर, एंड इन द सेम वे जो न्यूज़ें हैं
वो इन कल्चरल वैल्यूज़ को किस तरह प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते, या जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो इन सारी चीज़ों को किस तरह लेकर चलते हैं, वेदर दे आर इनकलकेटिंग इट इन देयर कंटेंट, ये जो भी वो प्रेजेंट कर रहे हैं, और लबे लबाब क्या उनका कंटेंट वैल्यू ऐड कर रहा है या फिर आपकी जो जनरेशन्स हैं उन्हें तबाह कर रहा है. सो दिस इज़ व्हाट आई प्लान टू टॉक अबाउट. और सबसे पहले मैं जो हूँ स्टार्ट करूँगी कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ इन आइडेंटिटी एंड सोशल हार्मनी. सो जब हम इसकी बात करते हैं तो कल्चरल वैल्यूज़ जो है हमारी फाउंडेशन है. इनफैक्ट वो किसी भी कोई भी कंट्री हो जाए, कोई भी सोसाइटी हो जाए, उसकी जो फाउंडेशन है दैट इज़ कल्चरल वैल्यूज़. जिस तरीके से कोई भी इमारत जो है बग़ैर फाउंडेशन के खड़ी नहीं हो सकती. यू कैन नॉट, वो एक प्रोवर्ब है ना, बिल्डिंग कासल्स इन द एयर. सो ये जो है ये कासल्स वाली यानी इट्स अ प्रोवर्ब, इट कांट बी रियलिटी. इन द सेम वे आप कोई भी इमारत, कोई भी आर्किटेक्चरल, जितने भी आपके जो है, यू लिव इन रियलिटी. तो रियलिटी में जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस है दे कांट बी बिल्ड इन एयर, दे नीड टू हैव अ फाउंडेशन. सो जिस चीज़ की फाउंडेशन नहीं होती वो वैसे ही कमज़ोर हो जाती है और वैसे ही टूट जाती है. इन द सेम वे अगर हम अपनी यूथ की बात करते हैं तो उनकी भी जो फाउंडेशन है दैट लाइज इन द रूट्स ऑफ कल्चर, द रूट्स, वो वैल्यूज़ हैं विच वी नीड टू इनकलकेट. सो हर एक अपना रोल अपने तरीके से प्ले कर सकता है. सो जब रोल की बात आती है, रोल ऑफ कल्चरल वैल्यूज़, तो इट इज़ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ एनी सोसाइटी. और ना सिर्फ सोसाइटी की है, इट्स द फाउंडेशन ऑफ अ सोसाइटीज़ आइडेंटिटी. उसमें जो है जो हार्मनी क्रिएट होती है, जो हिस्ट्री होती है, जो मॉरल कंपस होता है, ये सब जो चीज़ें हैं इट इज़ बेस्ड ऑन द कल्चरल वैल्यूज़ किसी भी जगह की. सिमिलरली ये जो वैल्यूज़ हैं ये बाइंड करती हैं कम्युनिटीज़ को, दे बाइंड द कम्युनिटीज़ टुगेदर. आप ये देखें कि कम्युनिटीज़ क्या हैं. कम्युनिटीज़ आर ग्रुप ऑफ पीपल, डिफरेंट लोग जो कि मिल के कम्युनिटीज़ बना रहे हैं. नाउ इवन इन, अगर हम जहाँ पर रह रहे हैं, इवन इफ़ वी लुक एट आवर कंट्री, तो यहाँ पर जो है डिफरेंट जो है विलेजेस हैं, डिफरेंट सिटीज़ हैं. इवन सिटीज़ में भी जो है यू विल सी कि भाई कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं. लाइक यू कैन जस्ट टेक वन एग्जांपल, आप किसी भी सेक्टर की एग्जांपल ले लें, उस सेक्टर में भी आप देखेंगे कि ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, कोई कम्युनिटीज़ होंगी, और वो कम्युनिटीज़ जो है डिफरेंट एरियाज़ में वर्क करी होंगी. सो जब आप चीज़ों को सेगमेंट करना शुरू करते हैं, व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरीथिंग इन कल्चर एस्पेक्ट और कल्चर वैल्यूज़ में, तो आप देखते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से को एग्जिस्ट करती हैं. सो हर सोसाइटी की जो फाउंडेशन होती है वो कल्चरल वैल्यूज़ होती है, और कल्चरल वैल्यूज़ जो है कम्युनिटी को करीब लाते हैं. आप अगर जो है कभी अगर आपने स्टडी किया हो अमेरिकन कल्चर को या डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, तो उधर जो है डिफरेंट स्टेट्स हैं और हर स्टेट में कम्युनिटीज़ हैं. और वो जो कम्युनिटीज़ हैं, नाउ इट्स नॉट दैट कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं दे आर जस्ट लिविंग विद इन देमसेल्व्स, अपने ही स्टेट्स में रह रही हैं. जब वो स्टेट या उनके जो लोग हैं वो इमिग्रेट करके किसी और स्टेट में जाते हैं तो वो वहाँ पर अपनी कम्युनिटीज़ फॉर्म कर लेते हैं. इन द सेम वे अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि वो लोग जो कि ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज में होते हैं, अगेन अगर वो फॉरेन सर्विस में होते हैं और उनकी जो पोस्टिंग्स होती हैं डिफरेंट ममालिक में, तो वहाँ पर जो उनकी जो है एरिया होता है वहाँ पर उनकी कम्युनिटी जो है, यानी अलॉन्ग विद फॉरेनर्स उनकी भी एक कम्युनिटी होती है. सो उस कम्युनिटी में जो उनके ट्रेडिशंस होते हैं, लाइक अगर जो है से समवन इज़ पोस्टेड, लेट्स से समवन इज़ पोस्टेड इन जापान, और तो जापान में जो ट्रेडिशंस होंगे, जो जापानीज़ ट्रेडिशन है वो तो जिस तरीके से अपने ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करते हैं वो तो हमें जो है बहुत ज़्यादा नज़र आता है. उनकी जो कल्चरल वैल्यूज़ है उसको वो किस तरीके से प्रिजर्व करते हैं, अपने बुज़ुर्गों के साथ उनके ताल्लुकात कैसे हैं, जो डिफरेंट उनके जो है कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो किस तरीके से कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं. इवन ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स आपने बहुत दफ़ा ऑब्ज़र्व किया होगा कि जापानीज़ आर ट्रू टू देयर वैल्यूज़ एंड दे इनकलकेट देयर कल्चर इन एवरीथिंग. सो इट इज़ ट्रू विद मैनी अदर कंट्रीज़ एज वेल. तो जब ये सारी कंट्रीज़ जो है
एक अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को प्रिजर्व कर रही हैं, तो देन वाई शुड वी बी एनी डिफरेंट. हमें भी अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि ऑन द इंटरनेशनल स्केल या इंटरनेशनली वी आर नोन टू बी द मोस्ट हॉस्पिटेबल पीपल एंड द मोस्ट हॉस्पिटैलिटी में वी आर नंबर वन. एंड देन हमारा जो रिच कल्चर है दैट इज़ ऑल्सो नंबर वन. सो being a Muslim, being from this country, being a patriot, we need to uphold our cultural values. So this is the number one thing जो cultural values, जो role cultural values play करती हैं किसी भी सोसाइटी में या किसी भी कम्युनिटी को करीब लाने के लिए. अच्छा, देन अगर हम जो है मज़ीद बात करते हैं तो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लोकल कल्चर. सो जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन जो है करीब करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को या इकोनॉमिक बेनिफिट्स को एंड एक्सपोजर देते हैं न्यू आइडियाज़ को. नाउ आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके सर के ऊपर से ये चीज़ें गुजर रही होंगी, बट यू नो दिस इज़ द रियलिटी. when you are living in a country, when you are sitting over there, तो दो चीज़ें जो है आपके लिए आसान करके पेश की जाती हैं, बट देन यू हैव टू एनालाइज थिंग्स, यू हैव टू ओपन दिस बॉक्स जो कि आपके सर पे है एंड गेट द इनसाइट्स आउट ऑफ इट. सो अगर जो है कल्चरल वैल्यूज़ को हम देखें तो अगेन कल्चर वैल्यूज़ के साथ जो है जो न्यू आइडियाज़ हैं या जो न्यू इनोवेशंस हैं दे गो हैंड इन हैंड. बट न्यू इनोवेशंस का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आप अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को भुलाकर सिर्फ उन न्यू आइडियाज़ को या जो न्यू इनोवेशंस हो रही हैं उनको अपने साथ लगा लें. सो अगर जो है इस पर्सपेक्टिव में अगर मैं डिजिटल क्रिएटर्स की बात करूँ तो देयर आर सम डिजिटल क्रिएटर्स जो कि हु आर true to their values and they want to present the positive image of their country. But then again ऐसे भी digital creators हैं who rather than upholding the cultural values, what they are doing is, Nurul Hassan, thank you so much for your compliment. What they are doing is they are not preserving their roots. वो अपने cultural values नहीं preserve कर रहे. Rather in fact what they are doing is कि in the name of entertainment, yeah, in the name of drama, yeah, in the name of can be anything. I won't say what it is because it's a very harsh word, and as a human I don't like to use harsh words. But yes, अगर मुझे ये चीज़ नज़र आए कि भाई ये जो कंटेंट है ये हमारी यूथ को किस तरीके से बर्बाद कर रहा है या बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है, या बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि बर्बाद हो चुके हैं इस कंटेंट के हाथों, तो देन आई डू नॉट हैव एनी sympathy for such digital creators, and I will not be ashamed of calling them what everyone else is calling. So rather than being very harsh and very rude, I would just want to send out this message loud and clear कि भाई आप अपना कंटेंट, यू वांट टू मेक एंटरटेनमेंट कंटेंट, तो आप एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाओ. एंटरटेनमेंट में इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप जो है वल्गैरिटी वाला कंटेंट बनाओगे या आप ऐसा कंटेंट बनाओगे which is hitting below the belt. I'm sure you will be familiar with this term, hitting below the belt. Hitting below the belt is कि जब आप मयार से हट के बात करते हैं या आप ऐसी बात करते हैं जो कि विच इज़ नॉट कल्चर और इथिकली भी इट्स नॉट अलाउड. सो ये वाला जो कंटेंट है, जब आप इस तरह का कंटेंट बनाओगे तो उससे आपकी पॉपुलैरिटी तो हो जाएगी, उससे आपको फॉलोअरशिप भी मिल जाएगी, उससे आपको लाइक्स भी मिल जाएंगी, उससे आपकी अर्निंग भी हो जाएगी, बट देन इट्स नॉट हलाल. क्योंकि ये वाली जो एंटरटेनमेंट है या ये वाला जो कंटेंट है ये हलाल के ज़ुमरे में नहीं आता. बीइंग फ्रॉम अ कंट्री जहाँ पर कल्चरल वैल्यूज़ को प्रमोट किया जाता है, जहाँ पर रिलीजियस वैल्यूज़ की इज़्ज़त की जाती है, उसको जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं, यू ट्राई टू बी अ गुड पर्सन. तो
आप किसी भी चीज़ को एलिमिनेट नहीं कर सकते, कल्चरल वैल्यूज़ में हर चीज़ आ जाती है. सो यू if you want to be socially acceptable, तो hitting below the belt या going out of your boundaries, it's not going to do you good. yes, अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में सोचें कि भाई इट्स गोइंग टू अर्न यू अ लॉट ऑफ मनी, तो वो मनी सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होगी. उसके बाद जो है वो लोग जो कि वो कंटेंट देखकर या जिनके बच्चे वो कंटेंट देखकर ख़राब हो चुके हैं या हो रहे हैं, जब उनको अकल के नाखून आएंगे, जब उनको होश आएगा, तो देन दे आर गोइंग टू रियलाइज़ कि उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है आप लोगों का कंटेंट देखकर या आप लोगों का कंटेंट प्रमोट करके. So rather than promoting that content, क्योंकि देखें, if you try to examine या observe करें आप ज़िंदगी को, और ज़िंदगी को आप जो है जब आप ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करते हैं तो आप बहुत कुछ सीख जाते हैं. सो अगर आप जो है सिर्फ यही चीज़ सीख लें कि भाई आप जो आज कर रहे हैं कल को इट्स गोइंग टू कम बैक टू यू. एक कहते हैं ना मक्का फाते अमल, आप जो कुछ करते हो यू गेट इट बैक एंड इट्स ट्वाइस एज मच एंड इट्स मैनी फोल्डेड. सो आज अगर आप एक ऐसा कंटेंट इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट बना रहे हो, या इन द नेम ऑफ ड्रामा बना रहे हो, या इन द नेम ऑफ फैमिली व्लॉग बना रहे हो, एंड दैट इज़ नॉट एज अप्रोप्रिएट, और इवन दैट इज़ नॉट appropriate for any age or for any generation or for any person. I won't say कि इससे जस्ट जो है यूथ इफ़ेक्ट हो रही है, आई वुड से इससे मैच्योर लोग भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं. मैच्योर लोग तो बहुत पहले से जो है ऑब्वियसली वो अपने यूथ में इफ़ेक्ट होना शुरू हुए होंगे, एंड देन अब इस टाइम पे जब उनकी इवन कबर में भी पाँव हैं तो स्टिल they are viewing that content and they are too much into it. So there was a time जब ये चीज़ें नहीं थी, cause we were not aware of the digital world, we were not aware of the technology. But then जो चीज़ आती है आपको उसकी जो है क्यूरियोसिटी होती है, आपको उससे एक्साइटमेंट होती है, और उस एक्साइटमेंट में आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि भाई हर चीज़ की एक बाउंड्री होती है. सो इवन विद डिजिटल कंटेंट or visual content or whatever you're seeing, you have to be very conscious कि आज जो चीज़ आप कर रहे हैं या जो आप अप्लाई कर रहे हैं या आप जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो tomorrow it's going to come back to you. So always try. Okay, Murtaza Alam Faruqi, I don't know what have you written, but it's actually it's not a speech, it's a discussion which I'm trying to do. कि speech तो ये होती है कि आप जो है बोलते हैं and you have mesmerized that and you don't have emotions. जो speeches होती है ना, mostly जो speeches होती हैं, they are all written, they are all fabricated and they don't have emotions. जो discussion होती हैं, जो real life discussions होती हैं, they are done like this. और कोई भी जो है इस तरह सोशल प्लेटफॉर्म पे बैठ के इस तरह की डिस्कशंस नहीं करता unless and until they have something to they have their own goals or motives. So in speeches people have their motives. Here I don't have any motive. In fact I don't यानी जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं अपनी गेन्स के लिए, so I'm not using this for my gain. I'm using this to aware you people. चाहे आप जो है बड़े हैं, चाहे आप पेरेंट्स हैं, चाहे आप केयर टेकर्स हैं, चाहे आप यूथ हैं, चाहे आप एडल्ट्स हैं, चाहे आप मिडिल एज हैं, चाहे आप ओल्ड पीपल हैं, सीनियर सिटीज़न हैं. So my purpose over here is as an educator who is trying to educate you people. चाहे आप जिस भी रोल में हैं कि भाई ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लोग बैठे हुए हैं जो इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट आपको वल्गैरिटी दिखा रहे हैं, जो डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ सच पीपल, सच कंटेंट क्रिएटर्स, क्योंकि दिस इज़ नॉट व्हाट वी स्टैंड फॉर, दिस इज़ नॉट व्हाट आवर कल्चर रिप्रेजेंट्स, दिस इज़ नॉट हु वी आर. क्योंकि दिस इज़ द मैसेज जो कि आप आउट loud दे रहे हैं. ओके, व्हेन आई से आप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू पीपल,
I'm talking about those digital creators who are not true to themselves, who are not true to their country. So ये जो है ना out of loyalty चला जाता है, this goes out of patriotism. If you love your country, तो आप कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे या कभी भी कोई ऐसा मटेरियल नहीं प्रेजेंट करेंगे जिससे इर्द गिर्द वाले या इर्द गिर्द की जो नेशंस हैं या इवन आपके साथ वाले भी लोग वो ये सोचें कि दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ रियलिटी और यही चीज़ है what we have grown up with. No, this is not the thing. Vulgarity is not part of our system. Vulgarity is not addressed in our culture values. So if you want to be a culture person, you first have to see कि आपका कल्चर क्या एड्रेस करते हैं, वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो आपने खुद भी उन पे अमल करना है और अपनी जनरेशन्स को भी उनमें इनकलकेट करना है. सो ये तो जो है देखें ग्लोबलाइजेशन और यानी न्यू ट्रेंड्स एंड क्रिएटिव इनोवेशंस का जो है जो ट्रेंड्स जा रहे हैं उसका इफ़ेक्ट हो गया है आपकी अपने लोकल कल्चर पे. ओके देन अगर हम जो है यस मैंने ऑलरेडी बात की है नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ सम पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स कि उसका जो इन्फ्लुएंस हो रहा है इट्स वाइड स्केल इन्फ्लुएंस. इट्स नॉट दैट कि मैं कहूँ कि भाई एक दो लोग उससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उससे जनरेशन्स इफ़ेक्ट हो रही हैं. और ना सिर्फ ये कि आपकी जनरेशन इफ़ेक्ट हो रही है या मेरी जनरेशन इफ़ेक्ट हो रही है, बल्कि आने वाली भी जो जनरेशन है इवन वो जनरेशन जो कि अभी काके हैं वो भी इफ़ेक्ट हो रही है. क्योंकि अगर आप ये समझें कि भाई बच्चा जब समझ बूझ का होता है तो तब उसको ये चीज़ें अंडरस्टैंड वो करता है, इट्स नॉट ट्रू इन दैट पर्सपेक्टिव. Even when a child is very small, still that child is interpreting a lot from his or her atmosphere या सोसाइटी में या इर्द इन्वायरमेंट में जो भी चल रहा होता है. ये तो अगर आप डिफरेंट कल्चर्स पढ़ें तो आपको जो है समझ आए कि भाई हर एज में जो है आपने किस तरीके से बच्चों की अपब्रिंगिंग करनी है. अब अगर मैं जो हूँ टर्किश कल्चर देखूँ तो जो टर्किश हैं एट द एज ऑफ लाइक जब उनके बच्चे पैदा होते हैं फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एज, इवन अगर आप जो है फॉरेन कल्चर भी देखें, बाहर के लोगों को भी देखें, तो बच्चे उनके काके होते हैं, उन्होंने उनके रूम सेपरेट किए होते हैं, उसमें जो है उन्होंने रेडियोज़ वगैरह या जो भी जो है बेबी मोनीटर्स हैं वो लगाए होते हैं एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट. सो सिमिलरली अदर कल्चर्स में भी इस तरह होता है. इवन पाकिस्तानी कल्चर में भी देयर आर वेरी फ्यू फैमिलीज़ जो कि इस तरह करती हैं एंड देयर इज़ अ टाइम बहुत लेट एज पे वो जाकर जो है अपने बच्चों को सेपरेट करते हैं. सो देयर इज़ अ एज टू सेपरेट दिस चिल्ड्रन एट अ सर्टन एज. सो हर चीज़ का एक रीज़न है एंड एज पेरेंट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. तो जब तक आप अपने कल्चरल वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, अपने कल्चर को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हाउ कैन यू बी अ गुड पर्सन? Yes, you can be a good person in many other ways, but you need to preserve your cultural values as well. और वही cultural values आपने आगे जो है inculcate करनी है अपने आने वाली generations में. और जिनको नहीं पता आप उनको इसी तरीके से information देकर educate करके aware कर सकते हैं कि yes you have to take care of these things. अच्छा देन जो है अगर हम मज़ीद बात करें तो अगेन इसमें जो है यूथ वल्नरेबिलिटी और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है क्योंकि when the youth is absorbing every kind of content तो they are very confused. उनको समझ नहीं आता क्योंकि देखें जो यूथ है एक सर्टन एज है ना, एक 13 साल का बच्चा है उसका माइंडसेट डिफरेंट होगा, एक 18 साल का बच्चे का माइंडसेट डिफरेंट होगा, एक 23 25 टिल उस 29 उनका एज जो है मेंटल लेवल डिफरेंट होगा. बट आप जितना ज़्यादा डिजिटल कंटेंट इनटेक करेंगे और क्या इनटेक कर रहे हैं दैट मैटर्स अ लॉट. सो vulnerability are there, misinformation is there. So as a parent, as an educator, you have a very serious role to play. In the same way जो digital creators हैं, those who are informing and creating enlightenment या awareness create कर रहे हैं, they also have a very serious and a very important role क्योंकि they are acting as moderators. Moderators मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि whatever they are saying, though they are saying on the basis of research and everything, but still
उनका काम है आपको एनलाइटन करना, मेरा काम है आपको एनलाइटन करना. सो आई एम फैसिलिटेटिंग यू पीपल. बट आप में से वो लोग जो कि पेरेंट्स हैं, यू बीइंग पेरेंट्स आर इन दैट पोजीशन जो कि डायरेक्टली अपने बच्चों को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली उनको बता सकते हैं. एक एज होती है जिसमें बच्चे आपकी बात सुनते हैं एंड यू हैव टू इंश्योर कि उस एज में आप बच्चों को अपनी बात समझाएं. जो चीज़ उनके लिए अच्छी है आप उनको वो भी बताएं, जो चीज़ उनके लिए बुरी है आप उनको वो भी बताएं. यू नीड टू डेवलप अ बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, अ बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट, अ बॉन्ड जिसमें जो है बच्चा आपके पास आते हुए घबराए नहीं. आजकल जो है क्या हो रहा है, ड्यू टू एवरी काइंड ऑफ डिजिटल कंटेंट ऑन द प्लेटफॉर्म्स, बच्चे आर कंफ्यूज, दे डोंट नो कि भाई व्हाट इज़ ट्रू व्हाट इज़ फॉल्स, हमने किस चीज़ पे अमल करना है किस चीज़ पे अमल नहीं करना. सो थिंग्स हैव बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड नॉट ओनली फॉर द पेरेंट्स बट ऑल्सो फॉर द चिल्ड्रन. और जब यूथ की बात आती है तो यूथ जो है दे आर मच मोर इन दिस सिनेरियो, दे आर कन्फ्यूज्ड क्योंकि दे डोंट नो कि भाई हम सब कुछ तो देख रहे हैं पर इसमें से क्या सही है क्या नहीं सही. बट देन देयर आर पीपल यूथ में भी जो उनके फ्रेंड्स हैं, देयर आर मेनी फ्रेंड्स जो कि सही गाइड नहीं करते. एंड चूँकि जो है एज पेरेंट्स आपकी बॉन्डिंग नहीं है बच्चों के साथ, तो आपके बच्चे जो है आउटसोर्सिंग जो है कर रहे हैं. जिस तरह काम के लिए आउटसोर्सिंग की जाती है इसी तरीके से they are outsourcing when it comes to taking advices, when it comes to taking suggestions, when it comes to taking different advices regarding relationships. So they are trying to outsource because they at that stage think that they have become so grown up, so mature that they can take the decisions in their hands. Even at that stage अगर आपकी जो है कभी उनके साथ बॉन्डिंग नहीं हुई तो sit with them. It's not an easy task to build a bonding with your child, चाहे वो किसी भी एज ब्रैकेट में हो. it takes time, slowly and gradually you can do this thing. So इसी तरीके से आप ना सिर्फ अपने कल्चरल वैल्यूज़ प्रिजर्व कर सकेंगे बल्कि आप अपने बच्चों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग भी बना सकेंगे. और वो अलमिया या वो जो है टेंशन या वो डेंजर सूरत हाल जो कि नज़र आ रही है, बच्चे किस तरीके से ख़राब हो रहे हैं स्पेसिफिकली जो हमारी यूथ है, सो उनको आप किस तरह बैक टू ट्रैक ला सकते हैं. there's a time when you have to be strict with the children but then there's a time when you have to change your roles. So अब जो टाइम है चूँकि डिजिटल एडवांसमेंट इज़ कमिंग एट अ वेरी ग्रेट स्पीड, सो आपने एज पेरेंट्स अगर इफ़ यू आर नॉट इनटू डिजिटल टेक्नोलॉजी, इफ़ यू डोंट नो what advancements there are in technology, तो then start educating yourself, start awareing yourself. जो टेक्नोलॉजीज़ है उनसे भी अवेयर करें, अपने आप को एजुकेट करें. जब आप अपने आप को एजुकेट करेंगे तो उससे ना सिर्फ आपका जो होराइजन ऑफ माइंड है वो ब्रॉडन होगा बल्कि यू आर गोइंग टू बी अ मच मोर गुड पेरेंट एज जो आप ऑलरेडी हैं. बट देन देयर आर पेरेंट्स जिनको किसी किस्म की कोई नो हाउ नहीं होती, उनको कुछ समझ नहीं आता, तो उन पेरेंट्स के लिए भी इट्स बेस्ट कि वो किसी ना किसी फॉर्म में अपने आप को एजुकेट करें या अपने सर्कल को उस तरीके से वास्ट करें जहाँ पर वो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके साथ वो इंटरेक्ट कर सकें, उनसे बात कर सकें, उनसे डिस्कस कर सकें. आपके फ्रेंड्स में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी नो हाउ और जो नॉलेज है वो आपसे बहुत ज़्यादा होती है. और बहुत से जिस तरीके से जो है पुराने ज़मानों में जो है बुज़ुर्ग हुआ करते थे, इसी तरीके से बहुत से बुज़ुर्ग अभी भी हैं. यू जस्ट नीड टू सर्च, यू जस्ट नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. तो बजाय कि आप जो है अपने बच्चों को पीरों फ़कीरों के पास ले जाएंगे, भाई ये पढ़ देगा ये पढ़ देगी, तो रादर देन डूइंग दैट थिंग, सबसे पहले जो आप चीज़ कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज़ लुक फॉर सॉल्यूशंस इन योर ओन बुक द कोड ऑफ लाइफ. आप उसमें जो है जो कुरान पाक है उसमें आपको हर चीज़ का सलूशन मिल जाता है. येस, इंटरप्रिटेशन के लिए यू कैन ऑलवेज गो टू स्कॉलर्स, यू कैन ऑलवेज गो टू डिफरेंट जो ज़्यादा स्कॉलरली हैं दीन के हवाले से, आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं. बट देन देयर आर ऑल्सो स्कॉलरली पीपल जिनका जो नॉलेज है वो आपसे कई ज़्यादा है और वो आपको जो है हर जगह पे कई जगहों पे मिल जाते हैं. बस यू हैव टू सर्च, always go on word of mouth
रादर देन कि भाई आप अपनी सर्च करते रहें और फिर आप कहें कि ओके जिस तरीके से अगर हमें जो है डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है तो हम ओला डॉक एप्लीकेशन खोल लेते हैं कि ओके जी इधर जो है कौन सा डॉक्टर अच्छा है। अब देन उधर जो है हर तरह के डॉक्टर है, यू डोंट नो कौन सा डॉक्टर अच्छा है। अदर देन दैट येस, अगर किसी का वर्ड ऑफ माउथ है, कोई आपको बता रहा है ये डॉक्टर अच्छा है, तो आप जाएं उस डॉक्टर को विजिट करें एंड वो आपका एल करेगा। Cause not every doctor can provide a cure to your ailment. In the same way आपको जो ज़िंदगी के मसाइल होते हैं, not everyone can address those मसाइल unless and until someone has gone through those मसाइल themselves, या they have gone through or they have seen a lifetime when it comes to knowledge, imparting knowledge, and when it comes to wisdom. Cause wisdom, it comes with experience, and then there are people जिनका wisdom जो है it comes before age as well. So we have every kind of person on this earth. We just need to explore कि किसके पास किस तरह का wisdom है, and you do come across such people and you do find people. So अगर आप ये कहें कि मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं मिलता या ऐसी कोई बंदी नहीं मिलती, तो you just have to search. आप सोचें और आपके लिए जो है वसीला बन जाता है. You just have to have that determination of faith. आपका जो है अंधा एतमाद होना चाहिए. This is what our religion teaches us. We need to have blinded faith. So आपका faith shake नहीं होना चाहिए. जब आपका faith shake नहीं होगा तो आपकी cultural values भी preserve रहेंगी. अगर आपका जो है cultural values जो है प्रिजर्व नहीं है, तो इसका मतलब है कि भाई आपके जो है फेथ के साथ इशू है. यू डोंट हैव दैट स्ट्रॉन्ग फेथ. ओके काजी नदीम अशरफ, आप क्या कह रहे हैं? yes, need to sit with masjid scholars to learn. Yes, people need to sit with the rightly kind of masjid scholars, cause not every scholar, you can't sit with every scholar, but then obviously there are many good people, good masjid scholars जिनके साथ आप बैठ के जो है you can learn a lot and you might be knowing a lot. In fact आप तो खुद जो है एक scholarly person है and you yourself are into this thing. So those of you who are seeking religious guidance, you can always go to या आप इनको contact कर सकते हैं काजी नदीम अशरफ साहब को. यहाँ पर जो है इनकी डीपी भी शो हो रही है और इनकी आईडी भी आ रही है. यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट हिम. आप इनको मैसेज करें तो ही गेट बैक टू यू एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू ऑफर एंड लॉट ऑफ गुड टॉक्स. सो यू कैन ऑलवेज अप्रोच हिम. अच्छा, सो ये हो गई यूथ वल्नरेबिलिटी के हवाले से. और येस, एज अ कंटेंट क्रिएटर वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर वी आर क्रिएटिंग. I as a content creator am very pertinent about this thing कि मैं जो भी create करूँ it should be value added. वो आप लोगों की ज़िंदगी में value add करे, कुछ अच्छा आप उससे learn करें, आपको awareness मिले. वो awareness जो शायद आपको जो है time लगेगा मिलने में. So I just try कि through my personal experiences, through my professional insights, मैं वो जो value है वो अपने लाइव सेशंस में शेयर कर सकूँ आपके साथ, ताकि आप उससे ज़्यादा सीख सकें. देन अगेन, जिस तरह मैंने अगेन बात की कि भाई पेरेंट्स जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस सब चीज़ में. आप जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लोगों को सुनते हैं, चाहे इन द फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट हो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ लाइव सेशंस हो. सो ये रोल पेरेंट्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं. दे कैन लिसन टू सच पॉडकास्ट एंड सच लाइव सेशंस एंड देन दे कैन इम्पार्ट those things out of those live sessions जो उनको अच्छी लगती हैं, वो अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें. there was a time, मसलन if I remember my time, जब हम छोटे थे तो छोटे in that sense कि इतने छोटे नहीं, काके यानी adults in the form college going. तो I remember कि हमारे घर में like we did not have technical gadgets, no mobile, no laptop, कंप्यूटर ही नहीं था. तो लैपटॉप तो जो है बहुत देर से आया, बट कॉलेज लेवल में वी डिड नॉट हैव एनी कंप्यूटर. सो वो जो टाइम था, उस टाइम में हाउ डिड वी स्पेंड आवर टाइम. सो वी हैड सो मच टू डू. यानी अब आप अगर जो है अपनी लाइफ को देखो तो आप कहते हो हर चीज़ पे आप 2-3 काम आपने किए तो आप कहते हो कि टाइम नहीं है.
क्यों टाइम नहीं है? टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपना टाइम जो है फजूल चीज़ों में स्पेंड कर रहे हैं। ऑल डे लॉन्ग इफ़ यू आर स्क्रोलिंग द स्क्रीन्स, उसमें एक कंटेंट आ रहा है, दूसरा कंटेंट आ रहा है, तीसरा कंटेंट आ रहा है, तो फ़ायदा किसका हो रहा है? आपका क्या फ़ायदा हो रहा है? आपको क्या उससे पैसे मिल रहे हैं कंटेंट देखने से? नो, आपका फ़ायदा नहीं हो रहा। आपकी आई साइट भी वीक हो रही है, आपका दिमाग वैसे ख़राब हो रहा है क्योंकि फजूल किस्म का आप कंटेंट देख रहे हैं। सो प्लस आपका जो टाइम है, क्योंकि टाइम एंड हेल्थ ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो वापस नहीं आएंगी। हेल्थ अगर आपने उसको जो है वक्तों पे मैनेज नहीं किया तो वो भी चली जाएगी हाथों से, और टाइम ने तो वैसे वापस नहीं आना। जो हम अभी बात कर रहे हैं ये लम्हा दोबारा नहीं आएगा। शायद इस वक्त जो मुझे लोग देख रहे हैं वो दोबारा इस लम्हे में नहीं आ सकते, या मैं जिस टाइम में बैठी हूँ या मैं जो कह रही हूँ मैं वो दोबारा अल्फाज रिपीट नहीं कर सकती, बिकॉज इट्स दैट प्रेजेंट मोमेंट जिसमें ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। बट देन when this time is gone, this is just going to be a recorded session which you or your generations to come, they are going to view it over and over again, and they are going to draw positive lessons out of it if they want to. So this is the power of good content. When you deliver that content, you at your back of the mind know that you have done you have done your duty in creating awareness, in providing enlightenment to those जिनको इन चीज़ों का नहीं पता, and then these things come back to you in the form of आप जो कर रहे हैं, it is your way of giving back to the community, and then what the community does in the form of duas, that comes back to you manifold. So in future जब आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है तो it means आपकी की हुई कोई अच्छी बात है या कोई अच्छा आपने काम किया है which is coming back to you in manifold ways. So we don't know कि हमारी कौन सी बात किसके लिए जो है एनलाइटनमेंट बन जाए या वैल्यू बन जाए, और उनके जो मुंह से निकली हुई दुआएं हैं वो हमारी लाइफ में किस तरीके से आकर कहाँ पर इफ़ेक्ट करें। सो ये तो एक दवाओं का सिलसिला है जो चलता रहता है। तो जितना अच्छा आप लोगों के लिए करते हैं उतना अच्छा आपको वापस मिलता है। अगर आप एज अ कंटेंट क्रिएटर आप जो है लोगों के लिए अपने कमाई के लिए जो है लोगों का बुरा करेंगे या उनकी आल औलाद का बुरा करेंगे, तो इट्स गोइंग टू कम बैक टू यू। इट कैन कम बैक टू यू, आप पे अप्लाई हो सकता है, आपकी आल औलाद पे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हर के बच्चों को जो है अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। कॉज जो औलाद का दुख होता है वो पेरेंट्स के बर्दाश्त से बाहर होता है। सो जब भी आप जो है कोई भी कंटेंट बनाएं, हमेशा इस नीयत से बनाएं कि ये कंटेंट मेरे अपने बच्चे ने भी कभी ना कभी देखना है। अगर आप इस नीयत से बनाना शुरू कर देंगे कंटेंट को, तो आप जो है फिर कभी भी कोई गलत कंटेंट नहीं बनाएंगे। पर अगर आप इस नीयत से बनाएंगे कि भाई इस कंटेंट के एवज़ मुझे जो है कोई मिलियंस ऑफ जो है डॉलर्स मिल जाएंगे या मेरी जो है बहुत ज़्यादा कमाई हो जाएगी, तो खुदा की जो रस्सी होती है ना, जब पकड़ में आता है ना इंसान, तो पैसे उधर ही रह जाते हैं, रस्सी फिर ढीली नहीं हो सकती। सो जस्ट कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि आज जो बीज आप किसी के लिए बो रहे हैं कि भाई ये इस खड्डे में गिर जाएगा, कल को आप खुद उस खड्डे में गिर सकते हैं, या आप गिर सकते हैं या आपकी आल औलाद गिर सकती है, या कोई भी जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो उस खड्डे में गिर सकता है। सो विद दैट सेड, this is all what I wanted to share today in this topic, and now let me just take your comments. Okay, Sajjad Rasool, thank you for your compliment. You think it's a stylish speech. Okay, इसमें stylish क्या चीज़ है? I don't understand. क्योंकि मेरे लिए this is something which is very important and this is need of the day. अगर हम अपने बच्चों को सही तरीके से एनलाइटनमेंट नहीं देंगे, अवेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा ये जो सेशन है दिस इज़ डायरेक्टली फॉर द एजुकेटर्स, दिस इज़ डायरेक्टली फॉर द पेरेंट्स, दिस इज़ डायरेक्टली
it's face to face, it's one to one, it is for all those people जिनको अपने जो यूथ है उसका ख्याल है, जिनको इस चीज़ का ख्याल है कि भाई आगे जो फ्यूचर है वो हमारी इस यूथ ने रन करना है, या हमारे इस यूथ ने हमारे जो मुल्क का इमेज है उसको जो है इम्प्रूव करना है। सो अगर यूथ ही जो है गलत रास्ते पे लग गई तो फिर तो जो आपकी प्रेजर्वेशन ऑफ वैल्यूज़ हैं वो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी, एंड यू विल सिंपली सीज टू एग्जिस्ट। सो जो गिने चुने लोग हैं, जो मेरी तरह बुज़ुर्ग लोग हैं, हम तो अपना टाइम पूरा करके चले जाएंगे। तो आगे जो टाइम है, जो जिस टाइम को जो संवरने वाला टाइम है, वो तो यूथ ने अपना पार्ट प्ले करना है। पर अगर यूथ ही जो है हाथ से जो है चली गई, ख़राब हो गई या बर्बाद हो गई, तो उस यूथ को जो है फिर कौन संभालेगा। सो दैट इज़ माई मैसेज। ओके, काजी नज़ीम अशरफ आप क्या कह रहे हैं? पेरेंट नीड टू कंट्रोल देयर किड्स ऑफ सोसाइटी एंड कंपनी। येस, पेरेंट्स पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, बट ये है कि पेरेंट्स आर नॉट सपोज टू कंट्रोल देयर किड्स, बिकॉज पेरेंट्स हैव टू इस्टेब्लिश अ फ्रेंडली बॉन्डिंग विद देयर चिल्ड्रन। हर बच्चे की एक एज होती है जिसमें आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, एंड देन वो कंट्रोल भी वो नहीं होता कि आप जो है बांध के उसको घर में बैठा लें। वो कंट्रोल वो होता है जिसमें आप आई एम सॉरी, जिसमें आप बच्चे को समझाते हैं कि बेटा ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, ये चीज़ इसमें रेपरकशन है। क्योंकि हर एज में, हर स्टेज में बच्चे की यू आर अ डिफरेंट पेरेंट। आपका रोल आपका एज पेरेंट वही होता है, बट यू आर अ डिफरेंट पर्सन इन दैट पर्टिकुलर एज। अगर आपका बच्चा 6 साल का है तो 6 साल के बच्चे के लिए आप एक डिफरेंट पेरेंट होंगे। जिस तरीके से आपने उसको एक्सेस करना है या जिस तरीके से आपने उससे बात करनी है, दैट इज़ गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट। बट जैसे जैसे आपका बच्चा ग्रूम करेगा, जिस तरीके से जो यूथ जिसकी मैं बात कर रही हूँ, विच वेरीज फ्रॉम 13 to 18 ईयर्स ऑफ एज, जो टाइम पीरियड होता है बच्चों के ख़राब होने का, सो वो वाली जो यूथ है उसके लिए यू आर गोइंग टू बी अ डिफरेंट पेरेंट। आपने उनको किस तरीके से अप्रोच करना है, दैट यू हैव टू डिसाइड, एंड देन वो आप किस तरह डिसाइड करेंगे। यू आर गोइंग टू सी पेरेंट्स हु हैव बीन सक्सेसफुल इन ट्रेनिंग देयर चिल्ड्रन फ्रॉम अ पर्टिकुलर एज, और आज जो है व्हाट इज़ द रिज़ल्ट। छितरोल इज़ नॉट द रिज़ल्ट, थप्पड़ इज़ नॉट द रिज़ल्ट, डांटना बंद कर देना, कैदी बना देना, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। यू हैव टू टॉक थिंग्स आउट। अब बच्चे जो है दे आर वेरी डिफरेंट एज पर आवर टाइम्स। हमारा वो टाइम था जिसमें जो है पेरेंट्स घूर देते थे तो हम चुप करके बैठ जाते थे। अब जो टाइम है आप उसमें बच्चों को घूर नहीं सकते। यू हैव टू प्रोवाइड देम विद लॉजिक, यू हैव टू कम अप विद लॉजिकल एविडेंस इन ऑर्डर टू टेल देम कि बेटा आप जो सोच रहे हो वो गलत है। Okay, so you're saying a very important topic for our generation to have positive values. Yes, that's a very important topic, positive values as well as cultural values as well as respect of cultural values, चाहे वो आपकी cultural values की respect हो या चाहे वो और लोगों की हो. So you need to read cultures. When we talk about cultures, we are not talking just about our cultures. हमने अपना कल्चर तो प्रिजर्व करना ही करना है, बट येट एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि और जो कंट्रीज़ जो है प्रोग्रेस करती हैं या जो डेवलप्ड हैं, उन्होंने अपने कल्चर्स को किस तरह प्रेजेंट किया है, एंड व्हाट आर द गुड थिंग्स यू कैन पिक अप फ्रॉम देयर कल्चर्स। काजी नदीम आप कह रहे हैं आप अभी बुजुर्ग नहीं बने। नहीं, मैं बुज़ुर्ग हूँ, आपको क्या पता भाई, मैं अपनी मेंटल थिंकिंग में आई एम क्वाइट अ बुज़ुर्ग, और मैं वैल्यूज़ में भी अपने बुज़ुर्ग हूँ, and I like to keep it that way. Okay, yes, you are saying I agree that parents have to give time. Yes, parents have to give time. पेरेंट्स के जो टाइम है, पेरेंट्स की जो रोल है बच्चों की ज़िंदगी में, दैट कैन नॉट बी अंडरमाइंड. एज पेरेंट्स यू हैव अ very strong role. You have a very I would say it's a very difficult responsibility and it's a very difficult task to be a parent, but yet जब अल्लाह ने आपको उस रोल में डाला है तो अल्लाह को भी पता था कि आपने उस रोल को निभाना है और किस तरीके से निभाना है.
So as parent, you just have to, you know, train your mind. You have to keep yourself updated, चाहे वो changing technologies हों, चाहे वो changing cultures हों, चाहे वो changing, you know, can be any difficult scenario. You have to keep yourself updated. You have to keep yourself knowledgeable एज़ पर बच्चे की जो एज रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक यू नीड टू नो हाउ टू डील विद चिल्ड्रन. कॉज जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, यू कांट produce a productive generation. You can't produce a productive child who is going to be a positive role model for the coming generations as well. Okay, Abdul Rahim Ghori, thank you so much for watching. And okay, you are saying Assalamu alaikum teacher Saiba. Wa alaikum assalam. I hope you are fine. Okay, well मैं तो मेरा ख्याल है एक यूनिवर्सल टीचर बन गई हूँ. सो थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बतों का कि आप मुझे जो है टीचर कंसिडर करें. एंड आई थिंक दैट्स माई रोल कि जो एनलाइटनमेंट मेरे पास है या जो अवेयरनेस मेरे पास है, मैं आप लोगों को किस तरीके से वो इम्पार्ट कर सकती हूँ. दैट इज़ माई मेन गोल एंड दैट इज़ माई पर्पज़ ऑफ लाइफ. So thank you for all your comments. And now I'm just going to go on different platforms and see आप लोगों के मेरे लिए क्या emojis हैं. Okay, thank you so much. Lots of hearts and thumbs up. Thank you so much. It means a lot. And yes, अगर आपको मेरा content पसंद आता है, you can always give me stars. So stars is a way of monetization from Facebook. So यू कैन अंडरस्टैंड. स्टार्स देने हैं तो दे दें, वैसे तो मुझे तो ये इमोजीज भी काम आ जाते हैं. तो मेरा तो इससे भी काम चल जाता है. सो इट्स टोटली अप टू यू. एंड देन डिजिट, आई होप आज का जो टॉपिक था इट वाज क्लियर टू यू. एंड नाउ आज के डिस्कशन के बाद यू एज पेरेंट्स, यू एज यूथ, यू एज यू नो brothers, you as sons would be able to, you know, take your role in the positive direction in your coming life, या जो अभी आपकी लाइफ चल रही है उसमें भी. cause these are the things which make us who we are. So if we say we are from Pakistan, we should say it proudly, I'm from Pakistan and I am a Pakistani. So मेरे से तो कोई भी जो है फेसबुक पे कहीं पर किसी प्लेटफॉर्म में पूछे कि भाई आप कहाँ से हैं, तो आई एम वेरी ओपन कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. इवन पीपल when they make their YouTube channels, they you know, they put something यानी बाहर की वो लोकेशन लगाते हैं कि भाई शायद उस पर मोनेटाइजेशन जल्दी हो जाएगी. बट इवन मैंने उधर भी जो है आउटराइट लगाया हुआ आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. सो मेरे जो टिकटॉक के one of the accounts that is also from Pakistan. So I am very open about it. I am a true Pakistani. I love my country. क्योंकि what I am, it is because of my country. And it is my responsibility to present a positive image of my country without any incentive or anything, because this is what makes me me. And हमारे जो culture values हैं, it makes us who we are and what we stand for. So if we are true to our culture, if we are true to our country, and if we love our country, we need to present this positive image. And as a person, as an individual, I would not like कि भाई गलत डिजिटल क्रिएटर्स की वजह से जो है हमारे मुल्क की जो है बदनामी हो, या हमारे मुल्क के बारे में कोई ये सोचे कि भाई यहाँ पर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं they are more prone towards vulgarity and they are creating some kind of, you know, bad things on digital platforms, cause that is not who we are. So सिर्फ चंद लोगों की वजह से don't judge us, don't judge the content creators कि everyone is like that. We are not like that. That is not our culture. जो हमारा culture है, I am my culture, and the way I dress, the way I, you know, come live in this live session. Even आप अगर मेरे morning sessions को भी देखें, those are pretty much natural. They don't have any filter. Even यहाँ पर भी this filter, it's pretty much natural. So it just helps me. थोड़े से जो है रूज मेरे cheeks पे show कर देता है, थोड़े से lipsticks show कर देता है. So other than that, there's no makeup. So this is just a filter. It's more of a natural filter. So what you are, you have to show it to the world,
cause this is who you are and you shouldn't be ashamed of it. Why be ashamed of it? भाई you're part of a country. आपकी कंट्री में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की स्किन टोन्स होती हैं, हर तरह के जो है मोटे पतले दरमियाने हर तरह के लोग होते हैं. Why be embarrassed? जब when you start becoming embarrassed of who you are, it means you have ceased to exist. You have simply forgot your cultural values. So हमारा culture, it's a very rich culture. It teaches to love everyone, to include everyone, to be hospitable, to be at your best. So ये सिर्फ हमारा culture ही नहीं है, it's also a religion, and our religion teaches us the same thing, to love everyone irrespective of their color, creed and religion. So this is my message for today. और इसके साथ ही अपना ढेर सारा ख्याल रखें. Yes, काजी नदीम अशरफ, proud to be Pakistani. Yes, proud to be Pakistani. So देखें आज तो मैंने green भी पहना है. Green also reflects that I love my country, so I love the green color as well, चाहे उसकी जो भी tones हो. So this is all, and now if anyone wants to come at the top of my screen तो मैं उनको live ले सकती हूँ session में. If there's anyone who wants to come live and share their opinions or share their experiences regarding any digital digital creators work जो कि उन्होंने जो है देखा हो lately, या जिस पे उनको एतराज़ हो कि भाई ये चीज़ जो है डिजिटल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए या ये हमारे कल्चर के अगेंस्ट है, तो you can always come at the top of my screen and I'll take you live in this session and then we can talk about it. So if there's anyone, you are free to let me know. और अगर जो है किसी ने नहीं आना, with that I can wind up this session and inshallah I'll see you on Wednesday. And in the meantime you can let me know what you want me to talk about. So feel free to just post your topics and I'll take you I'll take your topics randomly. Very waste है काजी नदीम, इसका मतलब क्या है वेरी वेस्ट का? क्या चीज़ मैंने वेस्ट कर दी है? So you can I think it's some kind of typo error. Okay, so I'll just bid everyone bye bye. So इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी on Wednesday. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा. Till we meet again. Allah Hafiz.